سوسائٹی یہاں کی جن مسائل سے دو چار ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے، تو یقیناً ہم جو مولا امیر علیہ السلام کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے لیے یقیناً ایک ایگزامپل ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے یہ لوگ سوچیں کہ یہ کس ہستی کے، کس عقیدے کے، کس دین کے ماننے والے ہیں، کہ ہمارا پیغام جو ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان ممالک اس خطے میں ان لوگوں کے سامنے بھی جانا چاہیے کہ علی کا حق ادا ہو یہ گماں تو ہو نہیں سکتا، علی کا حق ادا ہو یہ گماں بھی ہو نہیں سکتا، مگر حق دین اس احساس حق کو کھو نہیں سکتا۔ ارے نہ بھولو تم تعارف ہو علی کا اس زمانے میں، نہ بھولو تم تعارف ہو علی کا اس زمانے میں، نہ رہ جائے کچی کوئی تعلق کے نبھانے میں، نہ رہ جائے کچی کوئی تعلق کے نبھانے میں۔ نہایت عزت احترام سے دعوت دوں گا عالی جناب مولانا عباس عارفی صاحب کو انہوں کا فضل ممبر ہو بواز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم الأنبياء وخاتم السفراء سيد البطحاء المخاطب بياسين وطه أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سادة العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد آل محمد۔ عزیز محترم، مولا کائنات کی شہادت کی یہ مجلسیں ہیں اور آپ اور ہم اس بات کے دعویدار ہیں کہ اس عظیم امام کے ماننے والے، چاہنے والے شیعہ ہیں۔ آج اس مجلس میں میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے مطمئن ہو جاؤں کہ آپ پوری طرح سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی جاندار سے بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان و بھائیان، کل کی مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ کل کی اور آج کی مجلس میں ہم حق اور باطل پر گفتگو کریں گے۔ حق کیا ہے؟ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذات برحق ہے، حق وہی ہے، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے وہ حق ہے۔ شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملائکہ ہیں تو حق ہے،
मौत है तो हक है, रिस्क है तो हक है, जिंदगी है तो हक है, फरिश्ते और फिर अनबिया अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे क्या हैं? हक। हक। आज मैं हक के इस मौजू पर दूसरे अहम सवाल के ज़ैल में चंद मारूज़ात को आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। हक और बातिल में फ़र्क कल हमने एक बताया था कि हक अम्र हकीकी है, वजूद हकीकी है, जबकि बातिल अम्र अदमी है, जिसका वजूद नहीं है। एक हक ना होने को हमने नाम दे दिया बातिल, उसका वजूद खारिजी और हकीकी नहीं है। दूसरा फर्क आज हम आपकी खिदमत में बता रहे हैं कि हक और बातिल में फर्क यह है कि हक कभी बदलता नहीं है और बातिल चेहरे बदल बदल के आता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। यही वजह है कि 73 उम्मत मुस्लिमा के फिरकों में एक फिरका, एक मजहब ऐसा है कि जो अपना रंग कभी नहीं बदलता। माशाअल्लाह। उसके पहले ने जो कहा उसके औसत ने भी वही कहा, उसके आखिर ने भी वही कहा। है तो 12 अदद में, लेकिन 12 में किसी वक्त भी किसी जमाने में एक ने दूसरे की हरगिज़ तरदीद नहीं की। वाह वाह, माशाअल्लाह। बल्कि जब किसी एक भुलक्कड़ ने आके पूछा, यब्ना रसूलुल्लाह, कभी कभी हदीस सुनाते हुए मैं भूल जाता हूँ कि ये आपकी तरफ से हदीस मैंने सुनी या आपके जज की तरफ से या आपके बाबा की तरफ से, मैं ऐसे मौके पे क्या करूँ? तो फरमाया, तो तुम अपने भूलने पर अफसोस भी ना करो, हम में से किसी की भी हदीस को किसी के भी नाम से बयान करो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि जो पहले का कौल है वही आखिर का भी कौल। दूसरा फर्क हक और बातिल में यह है कि हक कभी बदलता नहीं है। हक का रंग एक होता है, ढंग एक होता है, अंदाज एक होता है, किरदार और गुफ्तार और रफ्तार में कोई फर्क नहीं होता। जहां जहां हक होगा वहां वहां एक जहती होगी, इत्तेहाद और वहदत का रंग होगा। यही वजह है कि हम हक की तारीफ में यही तो सुनते आए हैं, कल भी हमने यही सुना है कि हक तो अल्लाह की जात है और जो कुछ अल्लाह की तरफ से है, ना अल्लाह में कोई इख्तिलाफ है, उसकी जात में ना कोई दोगानियत है, ना उसकी जानिब से जो चीजें आती हैं उसमें कोई दो तरीके होते हैं, उनमें एक ही रंग होता है। हक कभी बदलता नहीं है और बातिल की बदकिस्मती यह है कि वो बदलता रहता है, उसको बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। अब जरा तीसरे फर्क की तरफ तवज्जो करें। हक को हक जाहिर करने के लिए किसी भी मौके पर किसी भी जमाने में बातिल का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हक की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है। हक को जाहिर करने के लिए बातिल का सहारा, मसलन अगर मौला अली की हकानियत को साबित करना हो तो हमें झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें झूठी रिवायात की जरूरत ही नहीं है, हमें बददियानती करने की जरूरत ही नहीं है, इबारतों में कलाम में हेरा फेरी करने की जरूरत ही नहीं है, मुगालता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हक है तो फिर हक के अंदर ही हक दलील होती है। वाह वाह, माशाअल्लाह। हक है तो फिर उसके लिए दलील भी हक ही है, किसी बाहर से दलील लाने की जरूरत नहीं है। इसके मुकाबिल में कितना कमजोर है बातिल कि वो हमेशा अपने सर को उठाने के लिए भी हक का सहारा तलाश करता है। हक का सहारा लेकर बातिल सर उठाता है। अगर हक सहारा न दे तो बातिल सर भी ना उठा सके, हक का सहारा लेता है। मसलन बातिल चाहता है कि आपके दिलो दिमाग में जाकर कुछ काम करे, असर दिखाए, तो सहारा आपका किस तरह लेता है?
ایک ایسی بات کا لیتا ہے جو حق ہے اور آپ کی فطرت اور آپ کا ضمیر اس سے مانوس ہے، آپ اسے آنے دیتے ہیں قریب، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بات تو حق کی تھی لیکن کام باطل کا کر رہا تھا۔ یہ آیا ہے باطل حق کو مٹانے کے لیے، حق کو دبانے کے لیے۔ مولا کائنات کے مقابل میں پوری توجہ سے بسم اللہ، مولا کائنات کے لیے میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ نے کہا علی حق ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ نے جہاں اپنے حق ہونے کا اعلان کیا ہے نا، وہی اپنا نام علی بتایا ہے۔ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ اب پیغمبر نے بھی علی کو حق قرار دیا، علی مع الحق والحق علی، اور یہ ایسی برحق حدیث ہے کہ جو نہ ماننے والوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ایسے رکھے ہیں کہ دشمن چاہیں بھی تو وہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا اس حدیث کو مٹانے کی کوشش کی گئی، بھلانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک نے بھولا تو دوسرے نے اس کو لکھ دیا، دوسرے نے بھولا تو تیسرے نے اسے لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد پچھتانے والے پچھتاتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر آ گئی ہے، تو پھر آسان ترین حدیث جو لوگوں کے زبانوں پر آ گئی ہے اس کا مٹانا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ رہ گئی۔ حق علی کے ساتھ اور علی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ مولا علی نے بھی فرمایا، کل بھی میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، وما شکر تو قرآن، وہ نہج البلاغہ ہے قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب، کہ مولا علی نے فرمایا کہ ما شکر تو فی الحق مذ رؤیتہ، جب سے میں نے حق کو دیکھا ہے کبھی اپنے حق ہونے میں کبھی شک نہیں۔ اب حق کے مقابل میں جو کچھ ہے ہم نے کل بتایا تھا باطل ہے، لیکن باطل کتنا کمزور ہے کہ حق کے مقابل میں کوشش کرتا ہے کہ سر اٹھانے کے لیے کیا کرے، باطل کا سہارا لے۔ یہ دوسرا فرق جو میں بتا رہا ہوں، آج کے حساب سے تیسرا فرق ہے، کل ایک فرق بتایا تھا، آج کے حساب سے دوسرا یہ فرق ہے۔ پہلا فرق کیا تھا، تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ذہنوں کو تیار رکھیں، آج کی مجلس سے بھی ہمیں کچھ لے کر اٹھنا ہے۔ مولا علی کی مجلس میں آئے اور کوئی بغیر علم کی خیرات کے واپس چلے جائے، کہ یہ ممکن ہے؟ ہمارے یہاں تو ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آج جو ہم نے دو فرق بتایا، پہلا فرق کیا تھا، آج جو ہم نے بتایا، حق کبھی بدلتا نہیں، باطل ہمیشہ بدلتا۔ دوسرا فرق، حق کبھی بھی اپنی پہچان کے لیے، پہچانوانے کے لیے، تعارف کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیتا، جبکہ باطل ہمیشہ سر اٹھانے کے لیے کس کا سہارا لیتا ہے، حق کا سہارا لیتا ہے۔ اب ذرا سنیے کہ جب دیکھا کہ علی کے باطل ہونے کو کسی بھی طرح سے ثابت نہیں کر سکتے اور لوگوں کے ذہنوں سے علی کے حق ہونے کی حقیقت کو دور نہیں کر سکتے، میرے ساتھ چل رہے نہیں چل رہے؟ بسم اللہ۔ حق ہونے کو جھٹلا نہیں سکتے، باطل ہونا علی کا ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ حق کے مقابل میں کھڑے بھی ہوں، باطل ہیں پھر بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کیا؟ قرآن کو نیزے پہ اٹھایا، سہارا لیا کس کا؟ حق کا۔ کس کے مقابل میں؟ حق کے مقابل میں۔ اب میرے ساتھ چلیں، یہاں ایک اور عظیم حقیقت کا آج انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم حقیقت یہ ہے کہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن بڑا احترام صحیح، محترم صحیح، بڑا معظم صحیح، بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے، بغیر وضو کے اس کے حروف کو چھو نہیں سکتے ہیں، اس کا بڑا احترام ہے، بغیر کسی طہارت کے اس قرآن کو کہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے آپ چھو نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علی ایسا قرآن ہے کہ یہ کاغذی
माशाअल्लाह बहुत क्यों? इसलिए कि हक जो सरापा है, जिंदगी के साथ बोलता हुआ हक है, वो अली है। लिहाजा कागज कुरान को उठाया, सहारा लिया किसका? हक का। मकसद क्या था? कहिए ना, बातिल। हक के मुकाबिल में खड़े होने के लिए बातिल ने सहारा लिया किसका? हक का। मेरे मौला ने क्या खूबसूरत उस मौके पर लोगों को समझाने के लिए कहा, ये कुरान जो मेरे मुकाबिल में आया है ना, इसको पुराना समझो। कलेमत हक़्क़ि युरादु बिहल बातिल, है तो हक लेकिन बातिल इससे मुराद है। मकसद पीछे बातिल है, लिहाजा चूंकि इसके पीछे मकसद बातिल है, लिहाजा इस कुरान को भी छोड़ो और बात अली की सुनो। कुरान का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन कागजी कुरान अली के मुकाबिल में आ जाता है। क्या अज़वाजे रसूल उम्महातुल मोमिनीन है, ये एक हकीकत है। इसका भी बाज़ लोग इनकार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी अपनी इस्लाह करें। माशाअल्लाह। बाज़ लोग अपने थोड़ा सा इफराती बन जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होकर कहते हैं कि नहीं भाई हम फलां या फलां पैगंबर की ज़ौजा को उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते। कुरान ने कह दिया तो आपको मानना पड़ेगा, हक है तो मानना पड़ेगा। ये और बात है कि हर माँ अपना हक अदा नहीं कर पाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। जरूरी नहीं है कि माँ हर तरह से हर माँ अपना हक पूरा करती हो। माँ अगर सही मानों में हक पूरा कर दे, अपना अदा कर दे, तो दुनिया में कोई नालायक औलाद ही ना हो। क्या बात है? दुनिया में नालायक औलाद का होना बता रहा है कि हर माँ अपना हक पूरा नहीं करती है। जब आम माओं के अंदर ऐसी बात है तो मोमिनीन के माओं के अंदर भी ऐसी बात है। सवाल पड़े। लेकिन बात हक की है कि कुरान ने कह दिया उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है। लेकिन जब ये हक की बात भी, हरीम रसूल भी, नामूस रसूल भी, इज्जत रसूल भी किसी नाके पर सवार होकर आती है, हक के मुकाबिल में जिसे अली कहते हैं, तो मौलाए कायनात को जरा शक नहीं होता, जरा बराबर खौफ नहीं आता है। उस नाके की टांगे काट देते हैं। ये नाके की टांगे नहीं कट रही है, बातिल के सर उड़ाए जा रहे हैं। क्या उस जमल की टांगे नहीं कट रही हैं, बल्कि बातिल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौला ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी रंग में, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में अगर कोई हक का सहारा लेकर खड़ा होता है बातिल, तो तुम उसे पहचान लो, इसलिए कि तुम हक को पहचान गए हो। हक को पहचानने के बाद जो हक के मुकाबिल में आया वो बातिल। बहुत सारी मुश्किल हमारी भी इस दौर में मौजूद है, हम हक को पहचान नहीं पाते। हक अगर मेरे साथ चल रहा है तो वो तो आसानी से मैं पहचानूंगा, उसका ढंढोरा भी पीटूंगा, शोर भी मचाऊंगा। लेकिन जब मैं हक से किसी तरह जुदा हो जाऊं, फिसल जाऊं, और हक बज़ाहिर जिसे मैं पसंद नहीं करता उसके साथ हो जाए, तो फिर वो हक भी मुझे समझ में नहीं आता। हमने भी मेयार अपनी जात को करार दिया है कि अपनी जात पसंद है तो फिर हक है, और अपनी को पसंद नहीं है तो वो हक नहीं है। ये अजीब और गरीब है ना। लोग खिदमत करते हैं, खुद हैं ओहदे में तो खिदमत, खुद ओहदे पर नहीं है तो खिदमत भी कुछ नहीं है। ना मौला याद आते हैं, ना हुसैन याद आते हैं, ना अली याद आते हैं। मालूम हुआ कि हक को भी आपने अपनी जात के अंदर महदूद रखा हुआ है कि अगर मेरी जात के साथ साथ चलता है तो हम साथ देंगे, और अगर जात से जुदा हो जाता है तो फिर वो हक नहीं रह जाता। हम सब की इस्लाह होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम अली के मानने वाले हैं। अली के मानने वाले का मतलब जानते हैं क्या है? हक वाले हैं, हक के मानने वाले हैं। हक के मानने वाले हैं, नफ्स के मानने वाले नहीं है। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोहम्मद। पूरी तवज्जो सुनिएगा। हक की इस दूसरी पहचान को भी आपने सुन ली। सहारा लेता है बातिल, हक किसी का सहारा नहीं लेता, अपनी जगह पर अटल है, खड़ा हुआ है, उसे कोई इधर उधर कर नहीं सकता। तीसरा एक फर्क सुना करके फिर मैं आज के सवाल की तरफ आता हूं। ये कल की गुफ्तगू जो रह गई थी उसको मैं पाए तकमील तक पहुंचा रहा हूं ताकि आज का अहम सवाल उठाया जाए। तीसरा फर्क हक और बातिल में यह है, तवज्जो से सुनिएगा, कि हक अगर बुनियादी इन दो चीजों को समझ लें तो वाज़ेह है। हक जैसे कुरान रोशन है, वो भी रोशन है। जैसे अल्लाह ने किताब मुबीन कहा, वही हक़ुल मुबीन भी कहा। रोशन है, वाज़ेह है, देखना चाहे तो साफ दिखाई देता है, जबकि बातिल दिखाई नहीं देता। बातिल बिल्कुल नहीं दिखाई। क्यों? इसे तो उसका वजूद ही नहीं है, वो तो हक ही का सहारा लेकर चल रहा है। शैतान कभी भी आपको नहीं कहता है कि नमाज क्यों पढ़ते हो, यार नमाज पढ़ना कोई अच्छी चीज है, बिल्कुल ना पढ़ो, आराम से सो जाओ। कभी शैतान आपको नहीं कहता, क्योंकि आपके अंदर से उसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी कि तुम तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला खुदा के दुश्मन हो, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है नहीं नहीं, नमाज पढ़ो, अच्छी चीज है, जरूर पढ़ो, लेकिन अभी क्या जल्दी, हमें साथ चल रहे, अभी क्या जल्दी है? आपको किसी मौके पर अपील की जा रही है, आपके जेब में पैसे भी हैं, आपका दिल करता है कि कार्य खैर में कुछ हिस्सा डालें, आपने जैसे जेब में हाथ डाला, शैतान कहता है देना जरूर, लेकिन अभी क्या जल्दी है, बाद में दे लेना। वो बाद आने नहीं देता, आपको टालता है, क्या बात, भुलाता है, आपको भूलने की उस अंदर से मौजूद कमजोरी से फायदा उठाता हुआ दूर करता है आपसे। कभी भी ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल ना दो। मेरे साथ चल रहे हैं? ये और बात है कि उस्ताद शैतानों के भी कुछ इंसानों के अंदर है कि जो काम शैतान भी नहीं करता वो कर लेते हैं, और वो तो साफ साफ कह देते हैं कि उनको ना दो, इनको ना दो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हक पूरी तवज्जो से सुनिएगा, वाज़ेह तरीन वजूद है, जबकि बातिल उसका चूंकि वजूद नहीं है, उसका समझना मुश्किल है। यही वजह है कि हमेशा इंसान कंफ्यूज हो जाता है जब देखता है कि बज़ाहिर वो भी सही कह रहे हैं, बज़ाहिर वो भी सही कह रहे हैं, है ना? अब जरा देखिए पहचान कितनी मुश्किल हो जाती है। सहाबा है सारे पैगंबर के, पैगंबर गए हैं टहलने के लिए इफ्तारी के बाद मदीने से बाहर की गलियों में, देखते हैं बहुत खूबसूरत घोड़ा है, उसके हाथ में कि जो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला सहाबी है। कहा इसको क्या तुम बेचने के लिए लाए हो? कहा हाँ बिल्कुल। कहा बहुत अच्छा घोड़ा है, कितने में तुम बेच रहे हो? कहा 200 दिनार। कहा तुमको इसकी कदर नहीं मालूम है, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, इसकी कीमत इससे ज्यादा होनी चाहिए। उसने कहा अच्छा तो फिर 300 दे दीजिए। ये कलमा पढ़ने वाले हैं, सहाबी हैं, और पैगंबर खरीदना चाहते हो, ये बेचना चाहते हैं, उसकी कीमत से ज्यादा पैगंबर ने इंसाफ। ये देखिए हक यही है ना, हक ये नहीं है कि अगर कोई बेचारा भूला भाला कदर नहीं जानता, कीमत नहीं जानता, सस्ते में बेच रहा है तो उससे भी कम करके आप खरीद लो और अपने आप को कहो कि अक्लमंद हो। ये अक्लमंदी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये चालाकी है कि जो आपको हक से दूर कर रही है। पैगंबर ने फरमाया नहीं, इसकी कीमत इससे भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि घोड़ा बहुत अच्छा है। कहा अच्छा तो फिर 400 दे दीजिए। इधर ये कीमत बढ़ाता जा रहा है, ज़र्फ को छोटा करता जा रहा है। नहीं चल रहा मेरे साथ, तो मैं क्या करूं? कीमत बढ़ा रहा है, ज़र्फ को छोटा करता जा रहा है। पैगंबर ने फरमाया नहीं, बहुत अच्छा घोड़ा है, इसकी कीमत इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर 500 दे दीजिएगा। कहा ठीक है 500 इसकी कीमत मुनासिब है। हम लोग चुकाते हैं, पैगंबर कीमत को बढ़ाता है क्योंकि हक का तकाजा यही है कि हर चीज की सही मानों में कीमत अदा की जाए।
हर चीज की कीमत अदा की जाए। पैगंबर ने 500 दिया, अब उसके अंदर जो ज़र्फ कम होता जा रहा था ना, उसने देखा कि नऊज़ुबिल्लाह पैगंबर तो हमारे अल्फाज में हम भी अगर होते ना माजरत के साथ हम यही सोचते बहुत बेवकूफ़ है, नऊज़ुबिल्लाह होता नक़ल कुफ्र नबाशा फिक्र है। अच्छा, उसके अंदर शैतान ने वसवसा किया, 500 लिया, जेब में रखा, कहा हुजूर एक सेकंड के लिए जरा महार मुझे दीजिए वापस। पैगंबर दिया, महार आपको लेके कहता है जाइए खुदा हाफिज़। क्या बात हुई? का बात यह है कि मेरा घोड़ा है मेरे हाथ में। पैगंबर ने फरमाया कि मैंने इसको खरीदा है। कहा अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? एक सहाबी का किस्सा सुना रहा हूं, और ये भी अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, हमारी किताबों में नहीं है। कहा जाइए अगर आपने खरीदा है तो आप मुद्दई हैं, मैं मुनकिर हूं, मुद्दई गवाह पेश करे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। इतने में हज़रत अबू बकर तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, आप यहाँ क्या बात है? कहा देखो ना, मैंने इससे घोड़ा खरीदा, पैसे इसने मुझसे ले लिए, और रस्सी घोड़े की लेकर के कहता है कि मैंने सिर्फ दावा किया है तो गवाह पेश करूं। कहा मैं इजाजत हो तो इससे बात करूं। कहा बात करके देखो। कहा शेख तूने ये क्या किया? लगता है कि जितने ऐसे काम हेरा फेरी के करते हैं, सलवात पढ़िए मोहम्मद क्या शेख ये क्या सुन रहा हूं? कहा मैं उनकी शरीयत के ऐन मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि उन्होंने खरीदा, मैं इनकार कर रहा हूं, वो मुद्दई हैं, मैं मुनकिर हूं, मुद्दई को गवाह पेश करना चाहिए उन्हीं की शरीयत के मुताबिक, उन्हीं की शरीयत के मुताबिक मुद्दई को क्या करना चाहिए? गवाह पेश करना चाहिए। क्या बना? हुजूर ठीक ही तो कहता है। मैं जो बात कर रहा हूं ना कि जब बातिल हक का सहारा लेकर सर उठाता है तो अच्छे अच्छों के सर चकरा जाते हैं। आप नहीं क्या करते, आपकी मर्जी है। अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने नहीं रहते। अब यही तो बात करा, शरीयत का हुक्म ऐसा है कि नहीं है? मुद्दई हो, पैगंबर की शरीयत है, एक मुनकिर हो, दूसरा मुद्दई हो, मुद्दई को चाहिए कि गवाह पेश करे। हक के मुकाबिल में हक सामने आ गया, बातिल ने हक का सहारा लेके सर उठाया, बात समझ में नहीं आई, सिर्फ ये कह के मुंह लटकाए एक तरफ हो गए कि या रसूल अल्लाह ठीक ही तो कहता है। अच्छा खड़े हो गए। इतने में हजरत उमर तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह क्या बात है? ये हर मौके पर तलवार निकाल लेने वाले आज बड़े शरीयत के